गुड मॉर्निंग बच्चों। माइकल ऑन। इतना चला ना जाएगा इसमें। चला जाएगा लेकिन अच्छा से नहीं जाएगा। चलिए यहीं से आगे कर देते हैं, आप कट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर of chapter 2 for class 9th, that is the sound of music. Let us start. The very first question here is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाती है उस समय उसकी आयु क्या होती है? आंसर है कि एवलिन वॉज 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. Question number second is, when was her deafness first noticed? When was it confirmed? एवलिन की जो बहरापन थी उसका पता कब चला? आंसर है, हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाई हर मदर व्हेन एवलिन वॉज 8 years old. शी वॉज वंस वेटिंग टू प्ले द पियानो व्हेन हर मदर वॉज when her name was called, she did not move. That was when her mother realized that Evelyn had not heard anything. Her deafness was confirmed when she was 11. Now question number third. Who helped her to continue with music? What did he do? What did she do? What did he do and say? किसने उसकी मदद की थी म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में और किस तरह, और उसने क्या कह करके मदद की थी? आंसर है प्रेक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स। प्रेक्यूशनिस्ट का मतलब उन्होंने बताया था ड्रम इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ड्रम बजाने का जो निर्देश करता है, जो निर्देशक होता है उसको ही प्रेक्यूशनिस्ट कहा गया है। तो प्रेक्यूशनिस्ट Ron Forbes was the first person to notice Evelyn's potential. He began by tuning two large drums to different notes. He asked Evelyn not to listen through her ears but to try and sense the sound in some other manner. And the lower drum from the waist down. Forbes repeated the exercise and Evelyn realized that she could sense certain notes in different parts of her body. Now question number 4. How does Evelyn hear music? Evelyn music कैसे सुनती है? Evelyn heard music by sensing the notes in different parts of her body. When Ron Forbes turned two drums and tuned two drums and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. Now chapter 2 का पार्ट 2 है, ये सेकंड पार्ट है। Why did औरंगजेब ban the playing of the पुंगी? सम्राट औरंगजेब ने पुंगी वादन पे रोक क्यों लगा दिया था, प्रतिबंध क्यों लगाया था? आंसर है, एम्पायर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस। रॉयल रेसिडेंस का मतलब राजमहल में। फॉर इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड था।
गजब सा खराब सा स्ट्रेंज साउंड होने के वजह से उसने बैन किया था। इट बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर वीडेट नॉइज मेकर्स, उसका नाम ही रख दिया गया था नॉइज मेकर, पुंगी का। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? आंसर है शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो stem that is longer and broader than the pungi. It has 7 holes on its body. When it is played, the closing and opening of some of the holes produces soft and melodious sounds. Question number 3. Where was the Shehnai played traditionally? शहनाई को ट्रेडिशनली कहाँ बजाया गया था? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदला? ट्रेडिशनली द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. It was used only in temples and weddings. However, Ustad Bismillah Khan brought in the change by bringing it onto the classical stage. ये पहले केवल मंदिर मस्जिदों में बजाए जाते थे और बाद में क्या हुआ कि बाद में इसे क्लासिकल स्टेज पे भी बजाया गया। When and how? Question number 4. When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के क्षेत्र में बड़ी ब्रेक मिली? आंसर है बिस्मिल्लाह खान हैड accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अपने मामा के साथ वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में। एज ऑफ 14 At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted his back and told him to work hard and he shall make it big in life. उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ को थपथपाया था और बोला था कठिन परिश्रम करो, एक दिन बहुत बड़ा वादक बनोगे। ही गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के साथ उन्हें बहुत बड़ी ब्रेक मिली थी। लखनऊ इन 1938, लखनऊ में 1938 के समय जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी उस समय इन्हें बड़ी ब्रेक मिली थी। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। रेडियो पर सुने जाने वाले अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। Now question number 6. Here is why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? USA में शहनाई स्कूल बजाने से मना क्यों कर दिया था बिस्मिल्लाह खान ने? आंसर है बिस्मिल्लाह खान refused to start a शहनाई स्कूल in the USA because he could not live outside India. वे भारत से बाहर नहीं रह सकते थे। His students who had asked him to lead the Shehnai school promised that he would recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples in the city. छात्रों ने उनसे कहा कि अमेरिका में आप क्या करें, शहनाई स्कूल ओपन करें और यहाँ पे हम लोग बनारस जैसा माहौल बनाएंगे, अर्थात यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। द टेम्पल्स इन द सिटी। हाउएवर ही वांटेड टू नो इफ हिज स्टूडेंट could also transport river Ganga, which his student obviously could not. फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बनारस जैसा माहौल वहाँ मंदिर बना करके तो बना सकते हो, क्या नदी को वहाँ बहा सकते हो? गंगा नदी जो बनारस में बहती है, इस गंगा नदी को वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? ओबियसली बात थी कि उनके छात्र ऐसा नहीं कर सकते थे। ही हिमसेल्फ सेड दैट व्हेनेवर ही वाज इन अ फॉरेन कंट्री ही केप्ट यार्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो खुद कहते हैं कि जब तक वे विदेशों में होते हैं उन्हें
और भारत में आने की इच्छा बहुत सताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th एंड द लास्ट क्वेश्चन। Find at least 2 instances in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस। कहते हैं कि दो प्रश्न है कि दो ऐसी स्थिति बताइए जिसे पता चले कि बिस्मिल्लाह खान भारत को बहुत प्रेम करते हैं। बिस्मिल्लाह खान इमेंसली लव्ड इंडिया, दिल से प्रेम करते थे वो इंडिया से, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे भारत से। पार्टिकुलरली बनारस एंड डुमराव, खासकर भारत के जो दो शहर का नाम है जैसे डुमराव और बनारस, इसे और ज़्यादा पसंद करते। इन इनिशियल ईयर्स, अपने शुरू के वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन बनारस बिकेम हिज फेवरेट हॉन्ट्स, ज़्यादातर पसंद करते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन पीस एंड सॉलिट्यूड, शांत और अकेले रहकर वो रियाज करते थे। रिवर गंगा फ्लोइंग वाटर्स इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स, गंगा नदी की बहती हुई धारा उन्हें उत्तेजित करती थी, इंस्पायर करती थी और अच्छा करने को। टू rocks that were once thought to be beyond the range of Shehnai. Bismillah Khan refused to start a Shehnai school in the USA because he could not live outside India. यहाँ डबल स्कूल हो चुका है, एक को काटेंगे, ठीक है। So this way completed it. We completed it and now your job is to make fair copy for that and remember the question answers. Thank you.